Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your problem? No, no, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर? ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी, आप सभ्यता से बात करिए, आप सभ्यता से बात करिए, शालीनता से बात करिए। Rahul ji. आप शालीनता से बात करिए मंत्री जी। Speaker, sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together, everybody came together to help the people, people from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. Speaker, sir, I saw it with my own eyes, and I've seen many disasters. I've visited many different places where disasters have taken place, but it was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is remaining. Mother, father, grandmother, brother, everybody is dead, and there's only one person remaining. Sometimes the person is a child, sometimes the person is an adult. So it was a real tragedy to see that. And I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad. Thank you. Honorable members, the matter under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may
personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for the which text of the matter has been received at the table within the stipulated time, and the rest will be treated as lapsed. Item number 15, discussion on finance bill. Shri Jagadambika Pal ji. सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे 2024-25 के फाइनेंस बिल पे आपने समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं कल से इस फाइनेंस बिल पे चर्चा सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष से दोनों तरफ से सुन रहा था। मैंने देखा कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी फाइनेंस बिल पे कम बोल रहे थे और उस पर राजनीति पे ज़्यादा। आखिर हम जब बजट को पारित कर चुके, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन विनियोग विधेयक को पारित कर चुके, उसके बाद अगर आज हम फाइनेंस बिल को पे चर्चा कर रहे हैं तो आखिर 2024-25 का जो बजट हमने पारित किया है, अब उसके बाद अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो उन्होंने इस फाइनेंस बिल पे हम जब चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि 2024-25 के बजट को प्रस्तुत करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे बजट का जो फोकस होगा उसकी 9 प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस देश में 4 वर्ग है, 4 जातियां हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, हमारे किसान और गरीब। तो इन 4 वर्गों के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई जो एक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उस यात्रा को तेज करे। आखिर इस फाइनेंस बिल से हम बजट के संबंध में क्या उपाय करेंगे? अब हमारा इस फाइनेंस बिल से जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उस विकसित भारत के और 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे टैक्स है उसको सिंप्लीफाई करना, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी सर्विसेज में सुधार करना, या हमारे 1 minute एग्जाम्पल बता दीजिए हाउस को ऑर्डर में लगे। I request the members to sit on their chair. Please take your seats. Please take your seats this side. No, please sit down. Please sit down. Please take your seat. Please take your seat. Jagadambika Pal ji. तो हमारा स्वाभाविक है, मैं अपील करूंगा कि उनकी आपने एलओपी पीयूष गोयल जी। मैं दरख्वास्त करूंगा, यहाँ बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद हैं, गौरव गोगोई जी, सुदीप दादा, कि जिस प्रकार से माननीय सांसद यहाँ खड़े हुए चर्चा कर रहे हैं, सुरेश जी इतने सीनियर, सुरेश जी सीनियर, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ओनली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वहाँ पे देखिए क्या क्या चल रहा है। दैट इज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। आप देखिए क्या चल रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि वरिष्ठ नेतागण कम से कम अपने सांसदों को किस प्रकार से पार्लियामेंट पे बिहेव करना वो बताएं। चलिए मानवर, आप शुरू उनकी करें। उनकी आदत में है कि वो बोलते हैं और बोल करके चले जाते हैं। एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जब बोलने के बाद अगर हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं तो उनके प्रश्नों के, उनके बिंदुओं का ही जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं
तो बिल में आकर के 2 घंटे नारे लगाते हैं। आखिर इस तरीके की संसदीय परंपरा जो एलओपी राहुल गांधी के बनने के बाद हुई है, ये शायद संसदीय परंपरा प्रणाली पे कुठाराघात है और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से अगर मानिए आपने अनुराग ठाकुर जी को बोलने के लिए दिया, जिस तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये सदन का हमेशा एक डिकोरम रहा, देश का सर्वोच्च सदन रहा। अभी हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा, और ये परंपरा नहीं होती। और ये उपनेता थे, उनसे अगर अपील कर रहा हूँ, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि अब फाइनेंस बिल पे चर्चा हो रही है, कृपया सभी लोग इसमें भाग लेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस फाइनेंस बिल का मकसद केवल ये है कि जो हमने बजट प्रस्तुत किया है 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का संकल्प है, उसको प्राप्त करने के लिए हम इस फाइनेंस बिल के माध्यम से 2024-25 का क्या होगा, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स का सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा, टैक्स पेयर्स के सर्विसेज में किस तरीके से सुधार होगा, या जो अननेसेसरी कोई लिटिगेशंस होते हैं उन लिटिगेशंस को कैसे कम किया जाए, ये लगातार प्रयास करके और टैक्स पेयर्स को उनके प्रयासों को अच्छी तरीके से प्राप्त किया जाए। मैं इसमें आज कहना चाहता हूं मानवर कि कितना बड़ा अचीवमेंट है कि आज हम जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन इन टैक्सेशन की बात करते हैं, आज इस फाइनेंस बिल पे जो चर्चा हो रही है, इसमें जो टैक्सेशन के सिस्टम की रूपरेखा है, आज 2022 और 23 में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसकी तुलना में ये बजट 58% टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा कि 58% का एक सिंप्लीफिकेशन होने जा रहा है। और ये जो 22-23 के कॉर्पोरेट कर या 58% जो सरलीकृत हो रहा है, ये उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछली वित्तीय वर्ष में 2 तिहाई से अधिक जो टैक्स पेयर हैं उनकी जो नई अपनी एक पर्सनल टैक्स की जो स्कीम आई है उसका जो विकल्प चुना था। और ये 2024-25 को लेकर के केंद्रीय बजट में जो भारत का एक वित्तीय परिदृश्य है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.